Assalamu alaikum, dear students. We are here for the discussion of test number 9. First of all, we will discuss the MCQs. First MCQs हमारे पास valency of iron in ferrous sulfate. 1, 2, 3, 4. There are two possibilities of the valency of iron given in your textbook. One is ferrous sulfate and second is ferric sulfate. Remember that ferrous sulfate has the formula FeSO4 और यहाँ पर भी फेरस सल्फेट के बारे में पूछा गया है कि उसकी वैलेंसी कितनी है. सेकंड वन इज़ फेरिक सल्फेट, लास्ट में IC आता है और जबकि जो गिवन है इसमें OUS लास्ट में आता है. फेरस सल्फेट जो है यहाँ पर आप देखें कि सल्फेट आयन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, तो डेफिनेटली आयरन की जो वैलेंसी होगी वो इसमें 2 में आएगी. चूँकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन सल्फ्यूरिक एसिड, you know that H2SO4, 2 हाइड्रोजन आयन्स डेफिनेटली 2 पॉजिटिव चार्ज एंड वैलेंसी विल बी 2. सो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट की वैलेंसी है वो 2 होगी. अगर बात करें फेरिक सल्फेट की, डेफिनेटली फार्मूला हैज़ Fe2SO4 thrice. Here the valency of iron will be 3. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. फेरस सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी 2 होगी और फेरिक सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी 3 होगी. यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. Second one, the percentage of calcium in human body is, definitely you have to memorize something like that. 99% of our body mass is made up of different elements like oxygen 65%, carbon 18%, hydrogen 10%, nitrogen 3%, calcium and phosphorus both will have equal percentage, that is equal to 1.5%. so option B will be correct. This is a memory based question. You have to remember this value, that the percentage of calcium in the human body will be 1.5%. Option B will be correct. Third one, simplest ratio of carbon and oxygen in carbon dioxide is. यहाँ पर जो mistakenly ये टिक हो गया है D ऑप्शन पर, एक्चुअली इसका जो आंसर है वो B ऑप्शन होगा, 1:2. The reason is that in empirical formula we will talk about the simplest ratio between the atoms of different elements present in a molecule. So there is 1 carbon and 2 oxygen atoms. Simplest ratio will be 1:2. 3:8 आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन वो बाय मैस है, वो उसमें आप ये मेंशन करें, याद रखें इस बात को. व्हेन हम उसमें डिस्कस करेंगे कि बाय मैस उसके दरमियान जो रेशो है वो 3:8 होगी, क्योंकि कार्बन का जो है यहाँ पर 12 है और ऑक्सीजन का 32 है, चूँकि 2 ऑक्सीजन एटम है. सो 12:32 बाय मैस की अगर बात करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करें 3:8 होगी. लेकिन अगर सिंपलेस्ट रेशो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड बात करें तो 1:2 होगी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. और ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ऑप्शन डी यहाँ पर जो टिक हुआ है वो गलती से हो गया है, आपने इसका बी ऑप्शन ठीक रखना है. Next, which one of the following is mass number of calcium? Definitely the mass number of calcium is equal to 40, and 12 is the mass number of carbon, 20 is the mass number of neon, and 39 is the mass number of potassium, 40 is the mass number of calcium. Option C will be correct. Number of proton and number of neutron both will be equal to 20, that will be equal to 40. Fifth one, mass of proton is 1.0073 atomic mass unit. ऑप्शन बी और सी के अंदर जो मैस गिवन है वो न्यूट्रॉन का मैस है, और ऑप्शन डी के अंदर बोथ बी एंड सी, बोथ ऑफ द मैसेस आर गिवन फॉर द न्यूट्रॉन, एंड ऑप्शन ए विल बी करेक्ट बिकॉज द मैस ऑफ प्रोटॉन इन एटॉमिक मैस यूनिट विल बी इक्वल टू 1.0073. अगर आप इसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली फिर इसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी जो ग्राम के अंदर भी आप देखें तो 1.672 10⁻⁻24 ग्राम है जो मैस ऑफ प्रोटॉन है. यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं बी सी के अंदर वो दोनों न्यूट्रॉन के लिए हैं. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट.
Next, empirical formula of benzene is options are given here. You know the molecular formula of benzene is C6H6. When we are going to simplify it, definitely we will write the carbon ratio hydrogen. Both have 6 number of hydrogen atoms. Both have 6 number of atoms like that carbon and hydrogen. 6:6 simplify divide करें आप इसको 6/6 से definitely that will be equal to 1:1. सो आप 1 चूँकि लिखते नहीं हैं कार्बन और हाइड्रोजन या किसी भी एटम के साथ, तो डेफिनेटली CH का मतलब यही होगा C1H1, जिसको आप लिखते नहीं हैं 1 को. सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू CH. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. Impure matter is called mixture. You know that pure form of matter is called substance and the impure form of matter is called mixture. There is a classification of matter. So option A will be correct. Either it is homogeneous or heterogeneous, it doesn't matter, but we are talking about the simple classification that impure form of matter will be mixture. It might be homogeneous mixture or heterogeneous mixture, but it will be the mixture, and the pure form of matter will be equal to substance. So option A will be correct. नेक्स्ट वन फार्मूला मैस ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज़, पोटेशियम सल्फेट का जो मैस है आप इसको ऐड करेंगे. पोटेशियम का 39 जो मैस होता है आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सल्फ़र का 32 होता है, इसको ऐड करेंगे. ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 64. सबको ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 174. अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपने ग्राम लिखना है, मिलीग्राम लिखना है, AMU लिखना है या किलोग्राम लिखना है. जब आप ग्राम की बात करेंगे दैट विल बी to molar mass, but here is given that formula mass. Definitely you will write in the form of atomic mass unit. ना तो आप मिलीग्राम में लिखेंगे, ना ग्राम में, ना किलोग्राम में, क्योंकि वो फिर यूनिट अगर चेंज होता है तो वो फिर मोलर मैस बन जाता है, फार्मूला मैस नहीं रहता. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट 174 AMU atomic mass unit. Next, C6H12O6 is the chemical formula of glucose, sugar, limestone, caustic soda. Definitely बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये ग्लूकोज का, जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C6H12O6 इसका केमिकल फार्मूला है. जबकि अगर बात करें शुगर की, तो शुगर का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ C12H22O11 एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है. कास्टिक सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. 10th, air is an example of compound mixture element all. Definitely air is the mixture of different gases present in the atmosphere, and they have no fixed ratio. There might be less concentration of carbon dioxide, might be less concentration of oxygen and nitrogen as well, water vapors, methane, hydrocarbon, sulfur oxides and nitrogen के oxides हो सकते हैं. So air basically is a mixture, not a compound, because compound have molecular formula, chemical formula, and it has some fixed ratio by mass of different atoms or elements. Definitely फिर जब आप air की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई fixed ratio नहीं है. So air will be mixture. Option B will be correct. 11th, which one is not covalent compound? Copper sulfate, water, CH4, methane, HCl, hydrochloric acid. बाकी तमाम कंपाउंड्स के अंदर आप देखें, वाटर के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मीथेन के अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, HCl के अंदर भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है. जबकि अगर आप कॉपर सल्फेट की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं सल्फेट आयन होते हैं, कॉपर आयन्स होते हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ अटैचमेंट की हुई होती है, और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होता. कॉपर सल्फेट इज एन आयोनिक कंपाउंड. रेस्ट ऑफ ऑल द molecules will be covalent. Either they might be covalent or they might be polar or non-polar covalent bond, but they will be covalent bond. But in case of copper sulfate it will be ionic compound. So option A will be correct. शॉर्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यू नो वेल दैट स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. रेस्ट ऑफ ऑल द
हाइड्रोकार्बन, उसकी जितनी भी स्टडी होती है वो सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है। फिर उसका आपने स्कोप लिखना है। यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and it cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means or chemical reactions। आप इसको अगर केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। नेक्स्ट वन, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि होता क्या है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। उसके अंदर जो रेशो होगी वो डेफिनेटली फिक्स होगी। जब वो बनता है कंपाउंड तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं और कंपाउंड को सिंपल फिजिकल मीन से ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। Next one, define empirical formula. Write down the empirical formula of benzene and hydrogen peroxide. Simplest type of formula. It is the simplest whole number ratio of atoms present in the compound. Benzene का जो molecular formula है वो C6H6 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो CH हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, HO हो जाएगा। सो बोथ आर गिवन here. You can see that CH is the empirical formula of benzene and HO is the empirical formula of hydrogen peroxide. Next, calculate the number of molecules in 30 gram of glucose. 30 ग्राम गिवन है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकालने हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया है वो गेटो नंबर को, आपके पास नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आ जाएंगे। 30 इज़ द मैस इन ग्राम, 180 इज़ द मोलर मैस। डिवाइड करें 30 डिवाइडेड बाई 180, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.167। मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर से तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकाल सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट 5 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये सारी चीज़ें आप एक टेबल के अंदर देख सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो केमिकली कम्बिनेशन से बनता है, मिक्सचर फिजिकल कम्बिनेशन से बन सकता है। कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशो होती है, मिक्सचर के अंदर फिक्स रेशो नहीं होती। कंपाउंड हैव ऑलवेज केमिकल फार्मूला, मिक्सचर डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला। कंपाउंड ऑलवेज शुड बी ऑलवेज homogeneous, mixture might be homogeneous or heterogeneous. So compound have fixed melting and boiling point, mixture does not have fixed melting and boiling point। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। लास्ट है हमारे पास, how many HCl molecules will be required to have 10 gram of it? Definitely it is related to the concept of mole। आप सबसे पहले आप मोल निकालते हैं। मैंने आपको पढ़ाते हुए बार बार यही कहा था कि आपको सबसे पहले मोल की डेरिवेशन आनी चाहिए। मोल अगर आप डिराइव कर लेते हैं then you have no problem to solve any numerical related to the concept of mole। Number of mole is equal to mass in gram divided by molar mass। Mass in gram is given in 10 gram and molar mass you can find it 1 plus 35.5, that will be equal to 36.5। डिवाइड कीजिए 10 डिवाइडेड बाई 36.5, मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर से, दैट विल बी इक्वल टू 1.65, 10 raised to power 23 molecules। You can solve it by this method। This is the complete discussion of test number 9। If you have any query about that, if you have any question about that, you can contact me, you can call me anytime. I'm available for the help, and you don't worry about anything. Inshallah I will be available at any time। Thank you very much, take care, and Allah Hafiz।